gift her something, you know. So I said, what do I gift? What do I gift? And I was thinking that should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her and I said, Sia, this is what I'm thinking, she was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? Like, you know, crazy. I mean, are you crazy? And I said, Sia, think about it. How many mothers will come to their daughters and say, you know what, why don't I give you something and why don't you experiment, you know? Woman, so, this is crazy. Yeah, so अगर बहुत सारे लोग एक काम को नहीं कर रहे तो एक बार को ये भी नहीं सोचा जा सकता कि क्या वो काम में कोई दिक्कत होगी इसलिए बहुत सारे लोग उसे नहीं कर रहे. बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग बिल्डिंगों से जंप नहीं लगाते क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो नहीं फेस करना चाहते लोग. और ये जो भाई इंटरव्यू ले रहा है, ये वीडियो ख़त्म होने दो. इस भाई के बारे में मेरे पास मुझे वो मैडम जो कह रही हैं वो तो कह ही रही हैं इस भाई. एनीवे, I was Very like, cool. yeah, I mean, what my mom didn't do with me, Yeah. I don't want to not do that with my daughter, right? I want her to अरे experience. मेरे पिता भी मुझे बैंक डकैती पे नहीं लेके गए कभी अपने साथ, या ना वो करते थे. ये क्या लॉजिक है यार? Everything. This guy is saying it's very cool. Maybe he hasn't registered or processed it, but we are talking about a 16-year-old. Guy shouldn't be like, that's cool. Maybe he should just be Exactly. neutral. Just be neutral. We're talking about a 16-year-old. Just listen. Yes. Listen, and be like, okay, not my child. We're talking about a nabalig Yes. bacha. The parent is speaking, and they're expressing, and you're in a podcast. Of course, they're going to talk about stuff like that. So, okay. In his Yes. mind, maybe he has to approve or give approval to Yeah. any idea जो कि close to be feminist, progressive, liberal है. Should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her and I said, Sia, this is what I'm thinking, she was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? Like, you know, Crazy. I mean, are you crazy? And I said, Sia, think about it. How many mothers will come to their daughters and say, you know what, why don't I give you something and why don't you experiment, you know? Woman, So, this is crazy. yeah, so I was Very like, cool. yeah, I mean, what my mom didn't do with me, Yeah. I don't want to not do that with my daughter, right? I want her to experience everything. And a lot of women go through life without experiencing the pleasures of it, right? Yeah. So why Or be having in had that an orgasm. Yeah, so why be in that situation? And today I think my daughter is 19 and she appreciates the fact that at least I had that thought and she respects me for that. So that's amazing. I think that's wonderful. The male. अच्छा, जो ये शोधाब ने एक बात बोली ना, मैं एग्जैक्टली यही बात सोच रहा था उसको सुनते वक्त कि भाई वो अपनी बेटी की बात कर रही है जो 16 साल की है के साथ कुछ सर्टेन चीज़ देने का जो एक सर्टेन यूज़ में आएगी. तू अगर उसे कूल बोल रहा है ना सामने से, 2 मिनट के लिए सब्र करके सोच तो लो भाई कि क्या बोल रहे हो और उसका क्या कॉनोटेशन है. दिक्कत इंडिया का जो लेफ्ट है ना, पता नहीं किसी यूट्यूबर को मैं शायद सुन रहा था जो कहता है कि जो ये इंडिया का जो लेफ्ट होता है ना, ये लंडे का वोक होता है. आई डोंट नो लंडे का मतलब क्या होता है. आई थिंक कुछ आई गेस ये वो वाला नहीं है जो हम जनरली सोच रहे हैं. बेसिकली थर्ड क्लास वोक जिसकी कोई खुद की सोच नहीं है या खुद की कोई विजन नहीं है. वो देख रहा है कि बस बाहर ये हो रहा है वेस्ट में तो ये तो कूल ही होगा तो मैं भी कर लेता हूँ. ये वो वाली सोच है. और जिसको ये लग रहा है कि मतलब हाँ तो क्या हो गया भाई, ये बहुत डार्क बात है. एक एज एन एडल्ट जब आप एक ग्रोन अप मैन हो, आई एम गेसिंग दिस गाय इज एटलीस्ट 30 और समवेयर अराउंड दैट, मे बी मोर. जब आप ऐसे में किसी बच्चे के इस तरीके के कामों के बारे में सुन के एक्साइटेड हो रहे हो ना और उसको ये स्कूल ऐसे बोल रहे हो, बहुत नेगेटिव कॉनोटेशंस जुड़ी होती हैं उसके साथ. पीडीएफ फाइल्स वाली ऐसे समझो इसे. मैं ये नहीं कह रहा ये बंदा ऐसी ही सोच से कर रहा होगा. ये होती है बेवकूफ़ी, अंधपना की. ये लोग राइट विंग के लोगों को अंधभक्त कहते हैं. इनसे बड़ा अंधभक्त दुनिया में कोई नहीं है. ये इस लेवल के अंधभक्त हैं कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा जो ये बोल रहे हैं उसका एक्चुअल में मतलब क्या है. एनीवे, इस पे फ्रस्ट्रेट होने का तो मेरा तो कोई फायदा नहीं है. The vibe from the guy. This is just my note. And a काफी इसको भी गाय से दिक्कत हो गई. kindness, प्रेम भाव
कहाँ से आ रहा है नोट? This is a mother talking about her child. So I understand from the point of view of the mother that she's talking about her daughter. Whatever she's saying, that's a mother speaking. Should not be saying that's very cool. जब हम बात Yes, exactly. करें एक 16 साल के बच्चे, एक नाबालिग के बारे में, about sex, maybe just a simple note जहाँ पे हमें हो जाना चाहिए कि yeah, maybe this is where I साइड पे खड़ा हो जा. And I'm like, okay, interesting. Central idea से start होते हैं. Just because मेरी मम्मी ने नहीं किया, इसलिए मैं करना चाहती हूँ. बहुत सारी चीजें हैं, जो हमारे मम्मी बहुत सारी रेंज ऑफ चीजें मिल जाएंगी जो पुरानी जनरेशन ने नहीं करी. That cannot be the qualifier कि इन्होंने नहीं किया इसलिए मैं करना चाहूंगा. I think हम करना क्या चाह रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है. यानी कि अगर मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ अपने बच्चे को सेक्स टॉय दूं, मे बी बस उसको देखो ये जो बात बच्चे ने रिएक्शन दिया उसी पर्सपेक्टिव से मैं कर क्या रहा हूँ या मैं बोल क्या रहा हूँ. उसको ये नहीं देखना चाहिए कि एक्चुअली मेरे माता पिता ने क्या किया जो कि सेक्सुअली लिबरल या प्रोग्रेसिव होता, ओ तो मुझे वो करना है, तो वो दिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. तो मैं जानबूझ के एक्सट्रीम आइडियाज फेंकूंगा या बोलूंगा क्योंकि मुझे ये दिखना है. दैट्स लाइक सेइंग कि आई एम वेरी एग्जैक्टली. ये बच्चे के लिए अगेन ये जस्टिफाई कर रही है कि मैं अपनी डॉटर के लिए कर रही हूँ. ठीक है, ये कर रही होंगी. इनको शायद ये भी इनको आप दे सकते हो डिस्काउंट की. इनको शायद लग रहा होगा कि ये एक बच्चे के लिए कर रही है, क्योंकि बहुत सारे हमारे एक्शंस जो होते हैं ना, हम अपने आप को कुछ और बोल रहे होते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, पर हमारा रीज़न कुछ और होता है उसके पीछे. क्योंकि अगेन सब कॉन्शियस माइंड ज़्यादा ड्राइव कर रहा होता है हमारे एक्शंस को मुकाबले कॉन्शियस माइंड के. तो ये इनको भी चाहे एक हद तक यही लग रहा हो कि हाँ मैं तो ये अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, बट डीप डाउन अगर इंसान अपने आप से 2 मिनट के लिए कॉन्वर्सेशन करे ना और पूछे कि यार ये एक्चुअल में मैं क्यों कर रहा हूँ, तो इस भी इंसान को पता चल जाएगा कि भाई मैं कोई ऐसी चीज़ बोल देना चाह रहा हूँ या कह देना चाह रहा हूँ जिससे कि ऐसा लगे ओबे भाई ये तो कोई अलग ही चीज़ है, ये तो कोई खतरनाक ही लेवल का, मतलब लाइक कितनी प्रोग्रेसिव माइंड है ये वो. ये वहाँ से इस प्रेज या इस कूल दिखने के नीड से, हर किसी का कूल दिखने का अलग अलग होता है ना. छपरी लौंडे का मतलब है कि मैं भाई बाइक को एक टायर पे घुमाऊं तो उससे मैं कूल दिखूंगा. ये जो डेमोग्राफी का पार्ट है, ये लेडी इस डेमोग्राफी में एक अलग ही लेफ्ट का एक होता है कि भाई हमें एक लेफ्ट के वन ऑफ द लाइक फाउंडर और वन ऑफ द न्यू लाइक प्रोजिनेटर ऑफ अ न्यू वेव, इस तरीके की कोई चीज़ बन के दिखाना है अपने आप को. जस्ट बिकॉज भाई ये समाज के एक थोड़े से पैसे वाले या एक ऐसे तबके से आते हैं जहाँ पे ये इंडिया में, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलना भी कूल है ना, तो ये अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं वो. तो ये सब कुछ जो कह रहे हैं वो लॉजिकल, सही, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट चीज़ें नहीं होती. प्राउड जो होता है ना, आई थिंक मैं कभी एक न्यूज़ स्टोरी पढ़ा था, हॉलीवुड कोई एक्ट्रेस थी जिसके 4 या 3 बच्चे थे और तीनों के तीनों ट्रांसजेंडर हैं. एंड मेगन फॉक्स, दैट्स देयर आइडेंटिटी कि मेरे सारे बच्चे ट्रांसजेंडर हैं, जो कि सिंपल अगर स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग, आई थिंक कई बार बहुत सारे लोग कुछ दिखना चाहते हैं अपने आप में भी, अपने आप को मनवाने के लिए. आइडियोलॉजिकली मैं ऐसे देखा जाऊं, समाज में ऐसा देखा जाऊं, मैं तो बहुत ओपन माइंडेड हूं. मैं तो इतना ओपन माइंडेड हूं कि मैंने एक बार ये किया, ये तो बहुत ही ओपन माइंडेड है, इतने प्रोग्रेसिव ख्याल के इंसान है. तो आई थिंक ऐसे लोग मोर सो वो चीजें कर रहे हैं ताकि हम वैसे दिखें, rather than analyzing the content of our. देखो वन अप करने की जो रेस है उसमें कितना वन अप कर लोगे एक दूसरे को. कपड़ों में वन अप कर लोगे, घरों में वन अप कर लोगे, गाड़ियों में वन अप कर लोगे, क्या कर लोगे. उसके बाद भी एक ये भी चीज़ होती है कि किस चीज़ में वन अप करना ज़्यादा कूल है. अगर हम देखें जब जैसे जिसको हम इंडिया का एक टाइप ऑफ डार्क एज कह सकते हैं, तो उसमें ये था कि भाई कर्म कांड में कितना किसी को वन अप कर सकते हैं, राइट. ट्रूथफुलनेस और भगवान के पास जाने या भगवान की ज़्यादा याद करने को नहीं, दिखावा कि हम दिखावा कैसे करते हैं, ये चीज़ ज़्यादा कूल हो गई थी. इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट आज भी है. उसी तरीके से किस चीज़ को ज़्यादा करके कूल लगोगे, ये भी टाइम टू टाइम होता है. एक वक्त था जब ज़्यादा पैसे, चमकीली गाड़ी और बढ़िया से बढ़िया बड़े से बड़ा घर ज़्यादा कूल होता था. वेस्ट के टाइम पे आ जाए वर्चू सिग्नलिंग, कौन कितनी तगड़ी वर्चू सिग्नलिंग कर सकता है. आई मीन वो उसे वर्चू सिग्नलिंग नहीं मानेंगे, लेकिन है वो वर्चू सिग्नलिंग. कौन कितना ओपन माइंडेड या लेट्स से लेफ्ट माइंडेड या से लिबरल माइंडेड हो सकता है. ठीक है, तो आज के टाइम पे ये है कि कौन कितना एस्पाउस कर सकता है वोक लेफ्ट की वैल्यूज़ को. हम स्पेसिफिकली हॉलीवुड की बात कर रहे हैं. कोई एब्सोल्युटली नो ह्यूमन सेंस
वो मेक करते हैं, कुछ सेंस नहीं बनती उस चीज़ की। फॉर एग्जांपल जो ये एग्जांपल दे रहा था मेगन फॉक्स का, मेगन फॉक्स के 3 बॉयज़ हैं, लड़के। आई एम नॉट श्योर कि वो, आई थिंक वो उसके बायोलॉजिकल ही बच्चे हैं, आई डोंट थिंक ये अडॉप्टेड हैं, बट आई मे बी रॉन्ग। एक व्यक्ति जो कि लेट्स से एज ए बॉय पैदा होता है या एज ए लड़की पैदा होता है, उसको जेंडर डिस्फोरिया होना कि मुझे लग रहा है कि मैं लड़का हूँ, मैं हूँ तो वैसे लड़का लेकिन फिजिकली, लेकिन मेरे माइंड में मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ, या फिर वाइस वर्सा, इसका होना लाइक लाखों में से एक है प्रॉपर। हम इस वक्त देख के अपने आप रंग बदलने वाली बात नहीं कर रहे, होड़ में घुसने की बात नहीं कर रहे, हम एक प्रॉपर मेडिकल कंडीशन या लेट्स से साइकोलॉजिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल कंडीशन लाखों में एक में होता है इन जनरल, जो स्टैट है। एक ही औरत के 3 बच्चों का ऐसा हो जाना ऐसे है जैसे लेट्स से हमारे ही सोलर सिस्टम में एक और ग्रह जहाँ पे लाइफ डेवलप हो रही हो, उसका हो जाना, या फिर पूरे के पूरे यूनिवर्स में और कोई प्लेनेट ना हो जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट ना करती हो, जो कि स्टैटिस्टिकली बड़ी दूर की बात लगती है, क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशन है वो इतनी इम्प्रॉबेबल है। उस वजह से इवन लाइक इन चीज़ों की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जो मेगन फॉक्स क्लेम करती है कि मतलब मेरे 3 ही लड़के जो हैं वो लड़कियां हैं। एक्चुअली ये होता है मतलब इस वक्त क्योंकि पागलपने की होड़ लगी हुई है, कौन कितना पागल हो सकता है। तो और ये जिन लोगों को है इनसिक्योरिटी, या वो स्पेशली मैं जो रोगन को जब मैं शुरू में सुनता था तो उसका एक बड़ा फेवरेट टॉपिक होता था बात करना एक्टर्स के बारे में, कि एक्टर्स के अंदर ना जो व्यक्ति एक्टर बनने का डिसीजन लेता है बेसिकली कहीं ना कहीं ज़्यादातर उनमें से लोगों के एक डीप सीटेड इनसिक्योरिटी होती है। और मैं बाय द वे एज ए थिएटर आर्टिस्ट ये बात बोल रहा हूँ, मैं थिएटर ट्रेंड हूँ बाय द वे, मैं भी प्रॉपरली एक्टिंग के लिए बहुत अच्छे स्कूल्स से, अगर मैं ब्रैग या नहीं करना चाहता, लेकिन ट्रेंड हूँ, ठीक है। तो जो रोगन का ये कहना है, और मुझे चाहे ये बात 100% एक्यूरेट ना हो, बट बहुत हाई लेवल पे ये बात एक्यूरेट लगती है, और ये उन लोगों पे आपको सच साबित होता हुआ दिख जाएगा जो लोग सोशल वैलिडेशन के लिए पागलपने वाली हरकतें करने लग जाते हैं। अब ऐसे एक्टर भी हैं, जैसे अब जो शिंडलर लिस्ट में, जो एक ब्रिटिश एक्टर है जो शिंडलर लिस्ट में, जिसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप के जो ऑफिसर का रोल किया था, मुझे उसका इस वक्त नाम भूल गया, ब्रिटिश है वो। अगर आप लोगों ने होटल बुडापेस्ट देखी है तो उसमें जो ट्रेनर होता है, जो ज़ीरो या पता नहीं जो मेन कैरेक्टर है उसका जो ट्रेनर होता है, वो भी उसी एक्टर ने वो रोल निभाया। बहुत अमेजिंग एक्टर है, ठीक है। या और भी एक्टर्स हो गए, आई डोंट नो व्हाई, बट ब्रिटिश एक्टर्स के ही नाम याद आ रहे हैं, डैनियल डे लुइस हो गया। ये लोग आपको एक्टिंग और परफॉर्मेंस और आर्ट और क्राफ्ट, या इंडिया में नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिर मनोज बाजपेयी, इनकी बात कर लेते हैं, इनसे बाहर आपको इधर उधर की मतलब लोगों को कैसे होना चाहिए ये बताने के लिए नहीं बैठे होते। ऐसी वर्चू सिग्नलिंग वाली एक्टिंग नहीं कर रहे होते। इन जैसे ऑन द अदर हैंड, या फिर मेगन फॉक्स जैसे, देखो हमने तो ह्यूमैनिटी को ऊपर लेवल पे उठाने ले जा रहे हैं। नहीं भाई, अपना काम कर लो, नॉर्मल इंसान की तरह जीवन जी लो, इतना ही है बस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ इसे। आप सोक्रेटिस नहीं हो, आप विचारक नहीं हो, आप एक एक्टर हो। मे बी उस पे फोकस कर लो। और वो भी आई एम सॉरी टू से, मैंने इनका कोई काम तो नहीं देखा, लेकिन क्योंकि इतना मुझे पता है कि ये सीरियल्स वगैरह में काम करती हैं, तो हाईली प्रोबेबिलिस्टिक है कि ये बहुत मीडियोकर किस्म की एक्टिंग होगी, क्योंकि मीडियोकर किस्म के प्रोडक्शंस होते हैं। मे बी ऐसा ना हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये एक चीज़ है। तो अगेन ये जो इनसिक्योरिटी होती है, ये इन लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें करने के लिए मजबूर करती है कि इस तरीके से वैलिडेशन ले लो, उस तरीके से वैलिडेशन ले लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टूपिड बातें करके किसी ना किसी तरीके से दिखाओ कि हम कितने कूल हैं, हम कैसे तुमसे आगे हैं, तुमसे बेहतर हैं, और इसलिए हमें प्रेज करो। आप क्या कर रहे हो? प्यूबर्टी के बाद हर व्यक्ति दुनिया में अपने आप को खोजने की जर्नी में निकलेगा। उसमें से एक जर्नी सेक्सुअल भी होगी कि हम सेक्सुअली कौन है, उसको भी हम जानने लग जाते हैं। ये जर्नी सबको पता है, हर माता पिता को पता है कि भाई 14-13 में शुरू हो गई है एक बच्चे की। हेल्थी चीज हो सकती है कि आप एक डोर ओपन रखो कि अगर कोई भी कभी भी बात करनी है तो हम कर सकते हैं।
किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंफ्यूजन के बारे में, कोई भी कुछ भी बात हो, बच्चे को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो दरवाजा नहीं खुला जहां पे अपने माँ बाप से कोई भी कितनी भी प्राइवेट चीज हो, चाहे उसको सीमिंगली कितनी भी एम्बैरेसिंग लगे, चाहे कोई भी इश्यू हो, कोई भी चीज वो अगर फेस कर रहा है जो सेक्सुअल नेचर हो सकती है, हो सकता है स्कूल में कोई चीज चल रही है बट उसमें सेक्सुअल कुछ नेचर है, बुलिंग हो सकती है, इश्यूज हो सकते हैं, सेक्सुअल एक्सप्रेशन हो सकता है, आइडियाज हो सकते हैं, सपने हो सकते हैं, कुछ भी हो यार, मेडिकल इन नेचर हो, साइकाट्रिक इन नेचर हो, कुछ भी हो। पेरेंट्स ने नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऐसी बनाई है जहां पे हम कम्युनिकेशन को बहुत बढ़िया मेंटेन किए हुए हैं। बच्चे को ये फील नहीं होता कि मैं एक अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ जहां पे मुझे जज कंप्लीटली किया नई जा रहा है या टेम्पलेट फिर बुननी सजा मिल पड़ेगी, सकती है। क्योंकि ऐसी कोई टेम्पलेट कम्युनिकेशन की है ही नहीं जिसमें मैं ये कॉन्वर्सेशन इस इंसान से कर सकता हूँ। बहुत ही लाइट वर्जन लेते हैं इसका, एक बहुत ही लाइट वर्जन इसका हो गया कि फॉर एग्जांपल चू वर्ड हो गया, रुपया के साथ जो वर्ड राइम करेगा, ये ऐसी चीज नहीं है जो आपके पिताजी ने ना बोली है। श्वेताब को इस टैक्टिक का सहारा लेना पड़ रहा है चूतिया बोलने के लिए। GTA आने से 6 आने से पहले ये दिन भी देख लिया ना वो सोची है। हाँ, मे बी इन सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे एक्शन में अप्लाई होता है, नीडेड है, मैं बोल सकता हूँ और मेरे पिता पगला नहीं जाएंगे कि ये क्या बोल दिया। ये बहुत लाइट वर्जन हो गया उसका, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ये टेम्पलेट भी नहीं होती जहाँ पे हम ये तक बोल सकते हैं। ऐसे कॉमेडी सीन नहीं होते कि जब मतलब बाप और बेटा दोनों बाहर हैं और थोड़ी किसी व्यक्ति से किसी बारे में बहस हो जाए या कुछ भी हो जाए और जो लड़का है वो भड़क के बोल दे भाई क्या कर रहा है जो और फिर बाप बेटे की तरह हैं और बेटा बाप की तरह हाँ चलो 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 यहाँ से चलो। ऐसे सीन होते हैं फनी कभी कभार मूवीज में। कितनी लैडर्स, कितनी ब्रिजेस, कितनी डोर्स अपने बच्चों के साथ बना रखी है जो कि नेसेसरली हमेशा ओपन करने की जरूरत नहीं है, व्हेन नीडेड वो अवेलेबल होनी चाहिए। ये है हेल्थी पेरेंट। ये होती है भाई जो सेफ्टी के जो प्रिकॉशंस होते हैं ना, जैसे एम्बुलेंस है, जैसे फायर ब्रिगेड है, वो हर वक्त काम नहीं आती बट वो अवेलेबल रहती है, अगर आग लग जाए तो आ जाए। ये फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी बेटी है, बेटी की कोई फ्रेंड है, बेटी के फ्रेंड के साथ कुछ चल रहा है जिसको लेकर उसको कुछ आंसर चाहिए, लेकिन उसको वो आंसर्स मिल नहीं रहे लेट्स से, तो आपकी बेटी आपके पास, मम्मी या डैड किसी के पास भी आके बात कर सकती है, क्योंकि आपने वो डोर्स इतनी गजब लेवल पे मेंटेन रखी हुई है कि वो कहे कि मेरी फ्रेंड है, अगर वो कंफर्टेबल है तो नाम बता सकती है, उसकी लाइफ में ये चल रहा है, उसको क्या करना चाहिए, मुझे कुछ मैच्योर एडवाइस दो, मुझे कुछ पर्सपेक्टिव्स दो, उसको ये चीज कैसे डील करनी चाहिए। उसका बॉयफ्रेंड है जो एक्चुअली उससे ये सब चीजें करने को कहता है, मे बी हमारे पास कोई है नहीं बड़ा, हमें क्या करना चाहिए। यूजुअली क्या होगा, एक 15 साल की 16 साल की लड़की या इवन लड़के ओल्डर लोगों के पास जाते हैं एडवाइस के लिए, बट हो सकता है कोई भैया के पास जाए, हो सकता है वो किसी दीदी के पास जाए। ऑब्वियसली आपका बच्चा, आई डोंट थिंक आज के टाइम में लोग किसी व्यक्ति के पास जाते होंगे क्योंकि ऑनलाइन ही इतना कुछ अवेलेबल है। ऑफ कोर्स जाते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, बट आई थिंक पहला काम वो करेंगे, और अब तो खैर चलो AI भी, चैट GPT पता नहीं क्या कुछ आ गया है, तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। पर मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ भाई, वो जो ये जो आई थिंक श्वेताब भी ये बात कह रहा है, लेकिन जस्ट आई मीन मेरे एंड से मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप दोस्त नहीं हो उसके, एज अ पेरेंट आप दोस्त नहीं हो। जैसे काउंसलर होता है ना, गाइडेंस के लिए जाता है इंसान काउंसलर के पास, बट काउंसलर दोस्त नहीं होता। एक काउंसलर के साथ लेट्स से प्रोफेशनल या लेट्स से एक डेकोरम होता है, तो वो डेकोरम फिर भी रहेगा, बट आप क्योंकि उसके गार्डियन हो, आप उसके, क्योंकि लेट्स से अंटिल द टाइम ही और शी इज़ एडल्ट शेपर्ड हो यू नो, तो आप ही सबसे बेस्ट सहारा और उनकी बेस्ट उनके जो साथ जो बेस्ट चीज़ हो सकती है वो इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आई थिंक श्वेताब यहाँ पे ये भी कहना चाहता है शायद, आई एम लाइक ट्राइंग टू एक्सट्रापोलेट, कि ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे बीइंग बच्चे या लेट्स से अर्ली टीनेजर्स कोई उनका एडवांटेज ले सकता है, कोई उनसे एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकता है, इवन लाइक अर्ली क्या टीनेजर का भी ठीक है, इवन लेट टीनेजर्स भी, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी होती है भाई टीनेजर्स के अंदर कि हमें अप्रूवल लेने के लिए सामने वाले को प्लीज़ करना है, तो उस चक्कर में ऐसी चीज़ें जो एक व्यक्ति अपने खुशी से ना करे लेकिन सामने वाले का अप्रूवल और प्लीज़ करने के लिए कर ले, तो ये सारी गाइडेंस देने के लिए एक एडल्ट व्यक्ति जो कि उनका ही भला जिसके दिमाग में हो, जिसकी प्रायोरिटी हो कि उस इंडिविजुअल का भला होना चाहिए, वैसे व्यक्ति की गाइडेंस ज़रूरी है, ताकि वो कह सके नहीं ये मत करो, यू आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट, यू डोंट डिज़र्व दिस बिहेवियर, या फिर
अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा कह रहा है तो यानी कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, और जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता उससे कनेक्शन रखने के लिए दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये वो वाला, ये दोस्त वाला नहीं, हाँ भाई लौंडे ये करना है, क्या बता क्या करूं। कभी जिंदगी में आपसे दोस्त की तरह बात नहीं करेगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल Exactly, नहीं, हाँ, क्योंकि यही आप मैं भी माँ कह बाप रहा हो, था। और आपको वो होना भी नहीं चाहिए। आपको टू अ डिग्री ऑफ अथॉरिटेटिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड Yeah. स्ट्रिक्टनेस भी, बाउंड्रीज भी, वो भी आपके रूल्स हैं। जहां ये रूल्स आ गए कि एक सर्टेन लेवल ऑफ अथॉरिटेटिवनेस भी है, तो वो दोस्ती के विपरीत हो गया। दोस्ती के अंदर रूल फॉलोइंग, स्ट्रिक्टनेस, विपरीत वाली बात नहीं होती। अब देखो जैसे मान लो 35 साल का एक व्यक्ति है, मेरी एज भी 35 36 हो गई, अभी हुई नहीं, 35 साल का एक व्यक्ति है, ठीक है, मैं अपनी एज ही भूल गया और उसका लेट से 2-3 साल का बेटा है या 5 साल का बेटा है, ठीक है। तो वो ये नहीं है कि उसके साथ उसकी दोस्ती वाला कोई मोमेंट नहीं होता भाई, रफ एंड टम्बल भी करेंगे, खेलेंगे भी एक दूसरे को, थोड़ा सा एक दूसरे को तो नहीं बट एटलीस्ट बाप जो है वो बेटे को थोड़ा बहुत गद्दे पे इधर उधर वो क्यों, वो फूलने वाले कौन से होते हैं जहाँ पे पार्क्स में लोग जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा जंप वंप करने में खेलेगा, सब कुछ होगा, दोस्ती लेवल की भी चीज़ होगी। बट जो एज ए पेरेंट जो होगा ना, वो प्ले टाइम में अगर दोस्त होगा ना, तो पढ़ाई के टाइम में पूछ भी रहा होगा भाई पढ़ाई में क्या चल रहा है, ठीक है। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उनकी रिलेशनशिप डेवलप होगी तो थोड़ा सा शायद वो जो प्लेफुलनेस है वो कम हो जाएगी। बट एक सर्टेन फेज में, जैसे अगर मान लो अपने बेटे को आपको गाड़ी सिखानी है, आपको 18 साल का बेटा है, ठीक है, या फिर कि गाड़ियों के बारे में कुछ बताना है, तो लाइक वो आप पूरा अथॉरिटी है, इस गाड़ी को तुमने ऐसे कैसे कह दिया, इस गाड़ी को तुमने कैसे किया, वो ऐसा भी नहीं हो सकता। थोड़ा सा फ्रेंडली वाला भी लेवल रहेगा, लेकिन एक एक अथॉरिटेटिव एनवायरनमेंट, अथॉरिटेटिव नहीं कहना चाहिए, अथॉरिटेटिव इज एक्चुअली इट्स एक्चुअली प्रीटी हार्श वर्ड उस चीज़ के लिए, बट डेकोरम होगा, एक डेकोरम होगा कि हाँ ये बाप है भाई और ये बेटा है। ये सब चीजें नहीं एक्सिस्ट करती सर्टेन लेवल का। जीरो दोस्त है वो व्यक्ति जिसके साथ हम कंप्लीटली अनइनहिबिटेड हैं। नॉर्म वायलेशंस, रूल वायलेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन, क्लास में ये नौटंकी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसकी बात कर रहे हैं। ये इंसान मेरे को स्निच नहीं करेगा। दोस्त कंप्लीट ऑपोजिट है माँ बाप का। तो जितने माँ बाप ये कोशिश करते हैं ना कि मैं बेस्ट फ्रेंड बनूंगा अपने बच्चे का, पहला आपका वो रोल ही नहीं है। आपका रोल होना चाहिए कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ जिसके साथ आप बात कर सकते हो कोई भी। तुम टेंशन नहीं लो, हम तुम्हारी साइड में हैं, हम तुम्हें सपोर्ट ही करेंगे। तुम अगर मेरे घर आते हो तो यस, ये अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिठाने की ज़रूरत है कि नो मैटर व्हाट आई एम ऑन योर साइड एज अ पेरेंट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा अगर तुमने कोई गलती कर दी, तो हम उसे फिक्स करने की कोशिश करेंगे। अगेन इस पे बिल्बर का एक जोक है कि मैं अपने बेटे के साथ कैच खेलूँगा, कैच मतलब जैसे बॉल फेंक के कैच करते हैं, और उसे बताऊंगा कि भाई कैसे रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहिए ये वो पर इसका मतलब ये नहीं है अगर वो डेक्स्टर वाली हरकतें कर देगा तो मैं उसको छुपाने डेक्स्टर वाला नहीं करूंगा मैं। जिन लोगों ने डेक्स्टर देखा होगा उन्हें पता होगा, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। आज सोच रही हूँ मैं, आज सोच रहा हूँ मैं, ये खुराफात कर रहे हैं और पेरेंट कह रहे हैं जाओ करो। ऑब्वियसली नहीं भाई, तभी तो सारी खुराफात इंसान माँ बाप से छुपाता है। अगर पेरेंट्स ने ही कह दिया कि तुम जाओ नॉर्म्स वायलेट करो सारे, तो भाई जब पकड़ा जाएगा वो इंसान और वो अथॉरिटी कॉल करेगी पेरेंट्स को, आपका बच्चा सारे रूल्स या नॉर्म वायलेट कर रहा था, तो बच्चा कहेगा मेरे माँ बाप भी तो कह रहे हैं करो। अगर माँ बाप इनेबल कर रहे हैं कि तुम करो जो करना है तुम्हें करो, मजे करो, तो मजे के अंदर जो नुआंस है और कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसके अंदर हार्मफुल बिहेवियर्स आ जाते हैं, लेट्स से ड्रग्स, जिसके अंदर ऑल द वे टू यू कैन डिलीट योरसेल्फ तक आ जाता है भाई। अरे यार भाई लॉन्डो के या फिर 16-17 साल से लेके 21-22 साल तक के जो लौंडे होते हैं, उन्होंने कितने एक्सीडेंट कॉज किए हैं सुपर कार्स में, सुपर कार्स नहीं तो लेट से क्या होता है यार, लग्जरी कार्स में। अभी पुणे में पोर्शे केस होके हटा है भाई, बहुत पुरानी बात नहीं है, ऐसे लिखवाया था 200 वर्ड का, यंग बंदा था भाई, 18-17 कुछ इस साल का था लौंडा, मतलब यही जो एज होती है ना 15 से लेके 23-24, इस ग्रुप का ही बच्चा था, ठीक है। कहाँ से पोर्शे मिल गई भाई, पोर्शे की चाबियाँ, मुझे नहीं लगता कि 99.999999% इंडियंस के पास पोर्शे की चाबी अवेलेबल होगी उस एज में। कुछ सर्टेन उसके माँ बाप का एक सर्टेन बिहेवियर होगा, एक सर्टेन
फ्रीडम होगा तब जाके उसे मिली ना. और आई थिंक वो ड्रंक भी था या पता नहीं कुछ नशे में भी था. आई एम नॉट श्योर, तो मैं पक्का नहीं कहूँगा. लेकिन भाई BMW के अक्सर हम सुनते रहते हैं, यंग लौंडे, कोई किसी यंग लौंडे ने BMW से पेडेस्ट्रियन को उड़ा दिया. अरे यार भाई, इसमें लोग मर जाते हैं. ये वो लेवल की चीज़ है कि करो मज़े, जहाँ पे ये वाला लेवल आ जाता है. और मेरे को इस औरत का लॉजिक समझ में नहीं आया कि कैरियर, जब इसकी बेटी ने सामने से कहा कि अरे आर यू क्रेजी, आर यू मैड, तो इनका कहना है कि थिंक अबाउट इट, नोबडी डज इट. नोबडी डज अ लॉट ऑफ थिंग्स. नोबडी डज इंटरकोर्स विद एन एलिफेंट. क्या बोलोगे? हाँ करो एलिफेंट के साथ. क्या 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 लॉजिक है यार ये? दिस इज सो डिवॉइड ऑफ लॉजिक कि इस पे जब आप बात करते हो तो आपको लगता है कि समाज का वो तबका जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल या तो है या तो लिया जाता है. क्यों लिया जा रहा है इस लेडी का पॉडकास्ट? चाइल्ड रियरिंग या फिर बच्चे को क्या देने के ऊपर. क्या ये कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है? नहीं. जस्ट बिकॉज ये सेलिब्रिटी है और लोग देखना पसंद करेंगे. और फेमिनिज्म चल रहा है आज के टाइम पे फॉर सम ऑड रीजन. एक तो यार हमें ना वेस्टर्नर्स की सड़ी हुई दाल जो वो फेंक देते हैं ना जब खराब हो जाती है, हमें वो खाने का शौक है इंडिया में. ठीक है, जो चीज़ वहाँ पे अपना लाइफ कोर्स निकाल चुकी है, रिजेक्ट हो चुकी है, उसके नेगेटिव चीज़ें वहाँ पे देखी जा चुकी हैं, उनको भी हम अपने यहाँ ऐसे खुले में चौड़े में बेच रहे हैं जैसे पता नहीं क्या दुनिया की सबसे अच्छी च्यवनप्राश वाली चीज़ है ये. आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, मुझे नहीं आती समझ. बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, उनको सुलझाएगा कौन? उनको बाउंड्स में कौन लाएगा? कौन होगा जो स्ट्रिक्टली बताएगा कि ये बिहेवियर इतना बड़ा, फिर एक सर्कल आता है जो हम जहां पे क्लियरली कह रहे हैं बहुत बड़ा नो है. तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की भी बहुत जरूरत होती है. बच्चे कौन हैं जिनका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, जिसके अंदर भावना फट रही है, ब्रेन हाई इन इंपल्सिव थिंकिंग है, बहुत हाई इंपल्सिविटी है, रिस्क टेकिंग बहुत हाई है, स्पेशली टीनेजर्स में बहुत हाई रिस्क टेकिंग होती है. वो मोमेंट्स है जहां पे आपको एक्चुअल में, इसीलिए सेक्स एजुकेशन क्यों वरना कही गई है बच्चों को सिखानी चाहिए. आइडिया क्या है उसके पीछे? आइडिया ये है कि हम रिस्पांसिबिलिटी सिखाएंगे. वर्ड क्या, वापस आओ, रिस्पांसिबिलिटी. ये नहीं कह रहे बच्चों से स्कूल में कि सेक्स एजुकेशन जाओ करो, तुम लोग मजे करो, पागल हो गए हो क्या? मैं ये नहीं कह. रिस्पांसिबिलिटी, सेफ्टी, ये भी एक चीज़ है जो आपको आउट ऑफ द नोवेयर कभी दरवाज़ा खड़का सकती है आपका कि ये कौन सी फीलिंग थी या फिर ये क्या चीज़ है, ऐसा क्यों हो रहा है. अवेयरनेस, सारी चीज़ें हैं. ये नहीं है ये देखो ये पकड़ के हिलाओ ऐसे. कह रहा है ये जो भी हैं, ये वो पेरेंटिंग नहीं करी जहाँ पे इन्होंने डोर्स, चैनल्स ओपन नहीं रखे अपनी बेटी के साथ. प्रीटी श्योर कर रखे हैं, बट यहाँ पे मैं इनसे बहुत हार्ड डिसएग्री मारूंगा. बिकॉज यहाँ पे जितने लड़के हैं, एक बात बताओ, आपके पिताओं को सबको पता है कि भाई 13 के बाद जब तुम्हारे कमरे में कुंडी लगी है या जब तुम शावर कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है मैं सक्सेसफुली, किसी को पता नहीं चल रहा मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे पिता को हमेशा पता है. ये है एग्जांपल इक्विवेलेंट टू कि पिता तुम्हारे सडनली फोन पे क्लिप भेजे कि बेटा ये क्लिप चेक कर, इस पे हिला. या एग्जैक्टली. मैन, ये बात शुदा की बहुत सही है. अक्सर जो बच्चे होते हैं ना, जो यंग एज के लोग होते हैं, स्पेशली मैंने तो इस पर बहुत बारी पहले ही बात की है. मैं क्योंकि लुइस सीके के जोक का इस्तेमाल करता हूँ इस बात को करने के लिए कि लुइस सीके जो कहता है, उसका जोक है एक प्रॉपर कि 20 साल का जो भी लड़का या लड़की होगा उसको दुनिया में अपने से ज़्यादा खूबसूरत, अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट, अपने से ज़्यादा स्मार्ट, अपने से ज़्यादा किसी भी चीज़ में कोई भी इंसान नहीं लगेगा. और उसको ये लगेगा कि आई एम इनग्रेशिएटिंग इस दुनिया को बाय माई प्रेजेंस. और इसमें वो एग्जांपल देता है जो कि मैंने इतना तगड़ा रिलेट किया था, क्योंकि जब मैंने पहली बार वो जोक सुना था उस टाइम में कनाडा में था. और कनाडा में एक कॉफ़ी चेन है टिम हॉर्टन्स, जैसे स्टारबक्स यूएस की चेन है वैसे ही टिम हॉर्टन्स कनाडा की चेन है. और अगेन वो कॉफ़ी शॉप्स में ऐसे ही बच्चों को हायर करते हैं जो लाइक 18, 19, 20 साल के होते हैं. और वो बताता है कि कैसे आप कॉफ़ी शॉप में जाओ कॉफ़ी लेने, और वहाँ पे वही 20 साल का लौंडा या लड़की खड़ी होगी और सामने से देखेगी और बोलेगी हाँ क्या चाहिए. तो वो कहता है अबे तेरे पास मैं एज ए ग्राहक आया हूँ, तुझे खुश होना चाहिए, मैं पैसे दे रहा हूँ कॉफ़ी के लिए तुझे. तू किस बात का एटीट्यूड दिखा रहा है या दिखा रही है. प्रॉब्लम है 20 साल की एज की
कह रहा है 20 साल के बंदों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती। अगेन भाई जो भी आप में से 20 साल का है, ये सब ये मैं इसमें मैं शोदाब सब इंक्लूड है, ये हम सब के साथ होता है, इसमें कोई मैं आई एम नॉट पिकिंग ऑन 20 साल का पीपल। तो और एग्जैक्टली यार सेम जब आप टिम होटल में जाता था मैं और उनकी शक्लें देखता था कि अब इसका भी ऑर्डर लेना पड़ेगा और मैं सोचता था ब्रो आई एम गिविंग यू मनी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। बट एनीवे तो ये एक 20 साल की उम्र का चुचपा भी होता है। लाइक कौन लड़का है, इवन अगर तुम्हारे पिता जोक मार चुके हैं तो पकड़ चुके हैं, लेट्स एक बार उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा चल ठीक है सब करते हैं बेटा। ये हुआ पेरेंट हु अंडरस्टैंड्स प्यूबर्टी क्या होती है, एडोलेसेंस क्या होता है, यंग अडल्टहुड क्या होता है, कि हम चैस्टाइज नहीं कर रहे हैं आपको। इसके बियॉन्ड अगर मैं कहूं बेटा सुन ये वाली पॉर्न स्टार देखी क्या, ये नाम देख बेटा, इसको चेक कर। कोई बेटा नहीं है इस दुनिया का जो कहेगा ये बहुत कूल बाप है, क्योंकि वो आपके पिता हैं। माँ बाप और बच्चे में एक डिफरेंस है, वो आपके माता पिता हैं। इसीलिए रिसर्च में चाहे माँ बाप कितने क्लोज हो जो भी हो, टीनेज के इयर्स के बाद एडोलेसेंस के ऊपर बच्चे किससे सीखते हैं बिहेवियर, वो पूरा शिफ्ट हो जाता है माँ बाप से। बच्चे माँ बाप की सुनना बंद कर देते हैं, चाहे तुम कितने कूल हो जाओ, चाहे कितने दोस्त बन के भेष में आप कहो कि सुनो हम तो दोस्त हैं, लेकिन सही बिहेवियर ये होता है वो नहीं सुनेंगे। बच्चे सुनने लग जाते हैं। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है पीयर्स, यानी पीयर्स हो गए, ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। आई थिंक बहुत रेयर होता होगा कुछ लिमिटेड एक्सेप्शनल बॉन्डिंग हो सन फादर की या डॉटर मदर की, या यू नो लाइक फादर डॉटर या मदर सन की, जिसमें से कि बचपन से ही एक गाइडेंस लेने की प्रैक्टिस जारी रही है। और क्योंकि मैंने देखे हैं एक्चुअली ऐसे पर्सनल रिलेशनशिप्स जिसमें कि ऐसे बच्चे हैं जो दे हैव रीच्ड 25 और अगर कोई इशू आता है तो दे विल गो बैक टू देयर मदर, दे विल गो बैक टू देयर फादर बिकॉज दे हैव रियली गुड रिलेशनशिप विद देम एंड आस्क कि हाँ भाई ये चल रहा है, आपका इस पे क्या ओपिनियन है। ऑफ कोर्स वो करेंगे फाइनली वही जो वो डिसाइड करते हैं, बट ओपिनियन लेने जाना ही अपने आप में आई थिंक एक बड़ी अचीवमेंट है पेरेंट्स की, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से मैनेज किया कम्युनिकेशन को और कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखा कि बच्चों ने उस एज में भी एक तो उनके विजडम को इतनी वैल्यू दी और दूसरा उनसे जाके बात करने की इम्पोर्टेंस को भी समझा। बच्चे सीखते हैं अपने उम्र के दूसरे लोगों से। इसीलिए आप सबने अपने बचपन में डायलॉग सुना होगा कि ये लड़का बिगाड़ देगा तुमको, तुम्हारे दोस्त हमको पसंद नहीं है, वो हमको पसंद नहीं है। तुम्हारे माँ बाप क्यों सडनली तुम्हारे दोस्तों को अटैक कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है हमारे हाथ से कंट्रोल चला गया, ये हमारी नहीं सुनता। और वो तुम्हारे में बिहेवियर चेंज देख रहे हैं बहुत भयंकर लेवल पे, जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि वो चीजें उन्होंने तुम्हें नहीं दी है। तो वो एट्रीब्यूट करते हैं दूसरे लोगों को। और दूसरा बहुत बड़ा मार्कर क्या है जिसे तुम सीखते हो? ऑनलाइन रोल मॉडल्स, सोशल लर्निंग। सिंपल, बच्चे एडोलेसेंस पीयर्स में ही सीखते हैं। तो यानी कि वो आपको बड़ों की तरह देखते हैं। लाइफ में हैव फन, या फिर सेक्स करो, या फिर स्पेसिफिकली अगर आज के टाइम पे ऑनलाइन सोशल मीडिया वगैरह की लाइट में अगर इसको देखा जाए तो नॉट जस्ट पीयर यार, अब तो सोशल मीडिया पे तो कोई भी हो सकता है भाई। ठीक है, तुम किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हो अगर वो व्यक्ति इन्फ्लुएंस करने में अगेन इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी है भाई पूरी। एक क्या कहते हैं उसे, ऑक्यूपेशन बन गया है इन्फ्लुएंसर। तो या और एक्चुअली इस तरह की क्लिप्स देख के ना मेरे को लगता है कि शायद बंदा परेशान भी ज़्यादा इसीलिए होता है कि वो सोचता है कि यार अब ये बोल रही है, अब इसको पता नहीं कितने सारे लोग जो कि क्रिटिकली नहीं इसको देखेंगे फॉर व्हाट्सएवर रीज़न, बिकॉज वो इनको सीरियल के थ्रू फॉलो करते हैं या वो फेमिनिज्म की नदी में डूबे हुए हैं या जो भी उनका रीज़न है, वो उसको क्रिटिकली डाइसेक्ट करने की बजाय ओह बात हो रही है, कूल बात हो रही है भाई ये तो, जैसे कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी कूल। अबे उम्र देख अपनी भाई, अपनी शक्ल देख, अपनी उम्र देख भाई, 16 साल की बच्ची की बात हो रही है, कूल। सेक्सुअली एक्सप्लोर करो। इस एडवाइस के पीछे मैं प्लीज कहूंगा थोड़ी सी रिसर्च कर लो। मे बी अपने बच्चे को प्रोमिस्क्युइटी, सेक्सुअल पथ पे जाने से पहले रिसर्च कर लो। एडोलेसेंस में आपकी बेटी अगर 16 साल की है और आप उससे अगर कह रहे हो, लेट्स 18 साल की बात करते हैं, अगर आप उससे एडवाइस दे रहे हो कि जाओ 18 साल के बच्चों के साथ, लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ तुम सेक्स कर सकते हो,
तो एक बार स्टडी करो कि जो टीनेज ईयर्स में सेक्स होता है वो उसका कंटेंट क्या है। डरावना है, सेक्सुअल कोवर्जन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ट्रॉमा आपको मिलेगा, कंसेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली बात कर रहे हो बेवकूफों की। पहला, आपका ब्रेन डेवलप हुआ नहीं है। देखो भाई 20 ईयर ओल्ड मैं अकेला नहीं हूँ, ये भी कह रहा है तुम बेवकूफ। इम्पल्सिविटी में बहुत हाई हो, रिस्क टेकिंग में बहुत हाई हो। इम्पल्सिविटी में हाई होना मतलब हार्मोन्स होते हैं भाई, सबके साथ ऐसे ही होता है। सेल्फ कंट्रोल में बहुत कम हाई होना। कुल मिला के बंदरों के साथ हाइपर एक्टिव सेक्सुअल बंदर, देयर इज अ ह्यूज चांस, एंड ये सब रिसर्च बेस्ड है मैं जो बात कह रहा हूँ, Yeah. आपका बच्चा हर्ट हो सकता है। देयर इज अ ह्यूज चांस उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब हो सकता है, इवन तो आपने बहुत उनको सेक्सुअली रिस्पॉन्सिबल बना दिया, जो भी बना दिया है, लेकिन वो जिस इंसान के साथ कर रहे हैं भाई, हो सकता है वो कुछ निकम्मा नालायक निकल जाए। बच्चों में अच्छी खासी सेक्सुअल वो कुछ खास किताबें पढ़ के आया हो, कुछ खास वेबसाइट से होके आया हो, कुछ खास वीडियोस देख के आया हो, वर्जन पे रिसर्च है, काफी या आई हो। हो सकता है आपके बच्चे की या एक लड़की की बाउंड्रीज हो कि मेरे को ये मैं करना चाहता हूँ, ये सब चीजें मैं नहीं करना चाहता। बट काफी केसेस में लड़के कोर्स करते हैं, यानी कि मुझे करना है, और वो काफी चीजें तुमसे करवाना चाहेंगे जो तुम्हारा मन नहीं है करने को। देखो, हर कोई चीज जो सुनने में बहुत यही मैं बात कह रहा था पहले कि अगर सामने वाला इंसान इनफ मैनिपुलेटिव है, जो कि एक चंक ऑफ पॉपुलेशन होता है जो डार्क ट्राइड में हाई होता है, अगर वो इनफ मैनिपुलेटिव है, और इसमें कोई लड़का या लड़की की स्पेसिफिक बात नहीं है, दोनों ही साइड पे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। लड़कियों के साइड में ज़्यादा देखा जाता है कि जो मैनिपुलेट करते हैं या एक्सप्लॉइट करते हैं अपने पीयर्स को, लड़कियों की साइड में वो मॉनिटरीली करती हैं, और लड़कों की साइड में देखा जाता है कि वो सेक्सुअली बेसिकली करते हैं। तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, जैसा जो आप कह रहे हैं, इसके बारे में डेटा है, इसके बारे में भाई स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ एज इन की लाइक टेस्टिमोनियल्स, जैसे लोगों के अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए होते हैं, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था। अगर आपने एक लाइक कुछ लड़कियों से भी बात की होगी ना, उनके इस तरीके के एक्सपीरियंसेस या क्या कुछ रहा होगा, आई मीन जो भी आपके दोस्त या जो भी आपका ग्रुप होगा इस तरीके की रिसर्च का, तो उनसे आपको ये सुनने में मिलेगा कि जो अर्ली डेज, जैसे ये 18 ईयर ओल्ड की बात कर रहा भाई, उसमें तो लाइक ऑलमोस्ट भूल जाना चाहते हैं उन दिनों के अपने चीज़ों को लोग। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी होती हैं जो एक सर्टेन लेवल की बुद्धि आने के बाद वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे, और उन्होंने सिर्फ किसी से एक्सप्लॉइट हुए हों ऐसा नहीं है, कई बार लोगों ने दूसरों के साथ भी कर दिया होता है, जिसको कि वो आगे जाके सोचते हैं कि यार ये तो बिल्कुल सही नहीं था, ये मैं किसी इन्फ्लुएंस से की वजह से मैंने ऐसे एक्शंस लिए, मैं लेता नहीं। तो ये डेटा बैक्ड चीज़ें हैं। इन लेडी को क्या किस किस्म का लाइक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, या किस किस्म का अपने आप को प्रूव करने का वो है, आई डोंट नो। पेपर बहुत लिबरल और प्रोग्रेसिव लग रही है ना, उसको प्लीज रियलिटी में पुट करो कि होमो सेपियंस का बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो कैसी है। एंड ये है खूबसूरत ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं बात जो कर रहा हूँ उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है विदाउट बायस मैं स्टडी करना चाहूंगा। मेरी एडवाइस प्रैक्टिकल लाइफ में जब पुट करता हूँ तो कितना हार्म कॉज करती है, कितना बेनिफिशियल इस इंसान के लिए लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ में, बहुत हद तक चांस है कि आप वो एक्सपीरियंस काफी। इमेजिन करो एक बाप बोले कि मैं अपने बेटे को ना, वो कौन सी तो यार वो सर्च लाइट या टॉर्च लाइट पता नहीं क्या, तो है, जो रोगन हमेशा बात करता रहता है कि जब मैंने अपना पॉडकास्ट शुरू किया था तो हमारा जो पहला स्पॉन्सर था वो था, वो बेसिकली एक पुराने ज़माने की लंबी टॉर्च नहीं होती जैसे, उस टाइप की एक ट्यूब होती है, और उस ट्यूब के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका अंदर शेप बना होता है, जिसको लोग यूज़ करते हैं हिलाने के लिए, बेसिकली उसके अंदर करने के लिए, सिमिलर टू अ वाइब्रेटर फॉर अ गर्ल। ठीक है, अगर कोई बाप बोले कि मैंने तो अपने लड़के को टॉर्च, वही जो सर्च लाइट है या टॉर्च लाइट, उसका कुछ नाम इसी टाइप का है, सर्च लाइट टाइप, तो मैंने तो वो दिया अपने बेटे को, तो जो एज ए औरत या एज ए लड़की अगर आपको ये सुनने को मिले कि कोई एडल्ट आदमी, अधेड़ उम्र का व्यक्ति ये बात बोल रहा है 40-45 साल का कि मैंने अपने 16 साल के लौंडे को ये दिया है क्योंकि उसको जोश बहुत चढ़ता है, या फिर वट एवर जो भी रीज़न है, एज ए वुमेन या एज ए मैन या एज एनीबडी आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचोगे? आप सोचोगे भाई क्या कर रहा है, अपने लड़के को मुट्ठल बनाएगा क्या, तू क्या करेगा? और मुठबाजी की जितनी मतलब इफ़ेक्ट्स हैं नेगेटिव,
पता नहीं भर भर के उस पर रिसर्च है आज के टाइम पे। तो यार कितने मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, कितने लेवल्स पे वो इंसान को लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ अफेक्ट कर देती है। आई डोंट नो। हद तक रिपीट करोगे, जिसकी वजह से हो सकता है जो हम जिस चीज को बड़ी हेल्थी ले रहे हैं, हमें लग रहा है बहुत कूल चीज है, वो हो सकता है बहुत ही घटिया, खतरनाक, सेल्फ हार्मिंग पैटर्न्स में इंसान को ले जाए, जहां पे इंसान बहुत ही डिसफंक्शनल रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है। यही बात मैं कह रहा हूं। 18 में किसी के साथ बहुत गंदा एक्सपीरियंस हो गया था। सेफ सेक्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स को डिमोनाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट रिसर्च के वो हिसाब तो से बात नहीं कह रहा लोग कोई कैसे भी। बिहेव करते हैं, इसके हिसाब से सेफ्टी क्या होती है, क्या उम्र में कैसे बिहेव करना चाहिए। यानी कि चौकन्ने बनो अपनी जिंदगी में, समझदार बनो। 1970 और मे बी अगर कुछ चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर तुमको 18 में गवर्नमेंट ने लीगल एज तुम्हारी बना दी है तो भाई थोड़ा वेट कर लो भाई। दारू भी तो पीना एंजॉयमेंट ही है ना, दारू भी तो लोग पीते हैं ना, बट कोशिश करते हैं ना कि जितनी कम से कम पी जाए और जितनी डिलेड एज में पी जाए उतना बेटर है। इतना इंजॉयमेंट ठीक है, समझ आता है, उससे कोई ये थोड़ी है कि डिग्री मिस हो जाएगी, कि ये डिग्री टाइम पे नहीं की या फिर ये जॉब अभी नहीं ली तो नहीं, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उससे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के चांसेस भी बहुत हाई हैं, ये ध्यान में रखो। लेकिन अगर पॉजिटिव उसका सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस है कि मज़ा आएगा इसको करने में, एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बहुत हाई हैं। एक और ऑप्शन है कि थोड़ा सा डिले कर लेते हैं, थोड़ा सा, आई डोंट नो यार, इस चीज़ को मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रोग्रेसिव सेक्शंस में बड़ा नेगेटिव समझाता है कि तुम कौन होते हो उस चीज़ को पुलिस करने वाले। मैं कोई भी नहीं हूँ भाई, मत करो, जो मर्जी करना है करो। अपने बेटर फ्यूचर के लिए जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है, इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, सिर्फ इतना कह रहा हूँ। लोग इंडिया में ओपनली सब सेक्स नहीं करते थे, देयरफॉर क्योंकि 1970s में नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज़ कोई डेट में या किसी पीरियड में एक चीज एग्जिस्ट नहीं करी थी, इसका मतलब ये थोड़ी कोई चीज के कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, वो चीज ही अच्छी हो गई। इनफैक्ट प्रोज कम है यार। प्रोज क्या है? एंजॉयमेंट, एक्सपीरियंस। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हाई हो सकते हैं, टीनेज प्रेगनेंसी से लेके कुछ भी आप सोच लो, एसटीडीज, टीनेज प्रेगनेंसी, डार्क से डार्क लेवल तक के, गैंग, ग्रेप, डिपेंडिंग ऑन किस सिचुएशन में फंस गए आप, कैसे लोगों के साथ आपका होता नहीं है, सुनते नहीं है, आए दिन नहीं आती न्यूज़ के ऊपर पेपर में खबरें। सॉल्व हो जाती है एनी प्रैक्टिकल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। सेक्सुअल एजुकेशन का एक सबसे बड़ा जो गोल होता है या एम होता है वो है सेक्सुअली रिस्पॉन्सिबल होना, सेक्सुअली अवेयर होना। ये नहीं कि बस सेक्स करो, ऐसे सेक्स को प्रेजेंट करना जैसे उसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते ही नहीं है। सेक्स में नेगेटिव आउटकम्स नहीं हो सकते। हम बात क्या कर रहे हैं? 35 साल के 40 साल के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं ना, आप कह रहे हो 18, तो 18 साल के बच्चे बिहेव कैसे? इन मोहतरमा ने 16 कहा था एक्चुअली। इन जनरल कितना सेफ वे में बिहेव करते हैं, कितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कितने मैच्योर होते हैं, कितने सेंसिबल होते हैं, प्लस उस बिहेवियर का लॉन्ग टर्म आउटकम्स क्या होता है। अगर 18, 17, 16, 19 इन सब में नेगेटिव बहुत ज्यादा चीजें हो जाएं, ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जो इंसान को बहुत गंदे लगे, करने के बाद बहुत रिग्रेट हो, जो होता है, जो होता है, उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है, ये सारी चीजें वही मैं बोल रहा हूँ। आप अपने 4-5 जो भी आपके वुमेन फ्रेंड ये वो होंगे ना, अगर उनसे आपकी बात करने की कैपेसिटी है या इन सम कैपेसिटी आप लोगों से उनके टीनेज अर्ली एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछ सको, जो 16 से 23, 24, 25 साल के बीच का उनका इंटरकोर्स का एक्सपीरियंस रहा है किसी भी व्यक्ति के साथ, ज़्यादातर नेगेटिव होगा उनका जो रिफ्लेक्शन है उस चीज़ के ऊपर। इंपॉर्टेंट है, सोचना जीवन में इंपॉर्टेंट है। आप जब 17 के थे तो आप पॉर्न भी देख रहे थे, आप कोशिश भी कर रहे थे गर्लफ्रेंड मिले, आप फैंटेसाइज भी कर रहे थे एक्टिवली। मेरी बात समझ लो, हर बच्चा जो चीजें उसको एक्साइटिंग लगेंगी, छुप के कैसे भी हम करते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर होता है कि इंसान एक नॉर्म्स, रूल्स, ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं वो हम एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। दूसरा, हम अपने पीयर्स क्या कर रहे हैं उससे बहुत इंस्पायर होते हैं, अपने ग्रुप से। हमारे इन्फ्लुएंसर्स हमें क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए, हम उस पे बहुत सोचने लग जाते हैं। एक तरफ हमें मानना पड़ेगा कि बच्चे करेंगे खुराफाते, वो नेचर है, हम सब ने करी है, हम सबकी 50 कहानियां हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ सेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज की बात कर रहा हूँ। आपने सिगरेट भी ट्राई करी, आपने गुटखा भी खाया, आपने दारू भी पी, आपने एक बार ना भाई, गुटखा मत खाना और सिगरेट भी हो सके ना पीना भाई। अपने मुंह को, गले को भाई नहीं खाया और ना खाना है। डिफरेंट तरीके के कैंसर बहुत जहर है भाई, लिटरली। वैसे चलो इस बात सही है, जिसने खाना उसने खाना ही है। ये भी खाया था। तुम सब बताओ तुम्हारी पहली उम्र क्या थी? तो हम क्या कर रहे हैं? कोई उम्र नहीं थी भाई, आज तक टच नहीं किया। खुराफाते ही तो हैं। तो जो चीजें हमें पेश करी जाती हैं बिग नो, उनमें एक चुल होती है एक्सपेरिमेंट करने की। एक अच्छी पेरेंटिंग ये होती है जहाँ पे हम समझते हैं कि ये साइड एग्जिस्ट करेगी यूथ में, यस, बट बिना उस चीज को इतना बड़ा बनाए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या होता है। यार गुटखा खाना, सोच के देखो, आपके मुंह के अंदर एक
घटिया क्वालिटी का लिक्विड है, राइट? वो आपके मुंह में चल रहा है, आपके दांतों में फंसा हुआ है। साला कभी फूड अगर दांत में फंस जाए ना तो इरिटेशन हो जाती है कितने लंबे समय तक। गुटखा कैसे एग्जिस्ट कर सकता है यार? क्या घटिया चीज़ है गुटखा, हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है भाई। नेगेटिव आउटकम्स क्या होते हैं? हम एजुकेट करें यार, हम गाइड हैं अपने बच्चे के, तो हम उनको गाइड कर सकते हैं कि देखो इस उम्र में ये सारे बिहेवियर्स हैं जो लोग ट्राई करेंगे, फॉर एग्जांपल अल्कोहल। लेकिन एज अ पिता, एज अ माँ, ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से मैंने कभी नहीं किया, मैं नहीं हाथ रखना चाहूंगा, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। और समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जहां पे इंसान को लॉजिकली समझ में आए कि हाँ यार बात मैं समझ सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। वो प्रेम से आना चाहिए, कंपैशन से आना चाहिए, और वो आना चाहिए विद द इंटेंट टू एजुकेट। फॉर एग्जांपल दारू ब्रेन के साथ क्या करती है, क्यों एडिक्शन होता है, पहले हम खुद से पढ़े इस चीज को लेके, फिर समझाएं बच्चों को कि बेटा ब्रेन में ये चीजें होती हैं, जब तुम दारू का सेवन करते हो तो ये लेवल पे ये चेंजेस आते हैं। प्लस लॉन्ग टर्म में पता क्या होता है, कैसे दारू ब्रेन केमिस्ट्री तुम्हारी चेंज कर सकती है और एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन के बाद क्या क्या होता है लोगों के जीवन में। मेरा आर्गुमेंट क्या है, सबसे बेस्ट आर्गुमेंट क्या है दारू ना पीने का। मेरा सबसे गजब आर्गुमेंट क्या है, गांजे को ना फूकने का। पहला एज अ पर्सनल आर्गुमेंट, इमोशनली जो भी आइडियोलॉजिकल आर्गुमेंट हो सकता है कि मुझे क्या लगता है। अब जो भी आपका आर्गुमेंट होगा, भाई मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को अपनी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे पसंद है भाई मैं सोच पाऊं। कभी कभी जिंदगी में वो चीज अलग होती है, बट उस चीज के गामोर में बनो, कुछ भी हो। दूसरा हो गया साइंटिफिक आर्गुमेंट। साइंटिफिक लिटरेचर इतनी डरावनी है वीड पे, अल्कोहल पे एंड इवन सेक्स में। वीड के बारे में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे हम जो रोगन का एग्जांपल ले रहे थे, जो रोगन उस ग्रुप का ही पार्ट है, जो कि बड़े तगड़े लाइक वो है भाई वर्कर इस मामले में, वीड को प्रमोट करने। अरे इसके बड़े फ़ायदे हैं, ये हैं वो हैं। इंडिया में भी बहुत सारे वीड प्रेमी हैं। मैं एक इंडियन ओरिजिन का लड़का था, न्यूयॉर्क में था मैं उस टाइम, किसी थिएटर ग्रुप में मिले थे हम, तो ऐसे ही हैंग आउट कर रहे थे। तो वो बहुत ज़्यादा, वो इंडियन ओरिजिन का यूएस बॉर्न लड़का था, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ ये ऑब्ज़र्व की है कि अमेरिका या विदेशों में जो इंडियन भारतीय ओरिजिन के बच्चे होते हैं, जो वहाँ पैदा हुए होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लेके, और आई थिंक ये ट्रू है टू अ लार्ज एक्सटेंट। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था उस व्यक्ति के साथ, लेकिन आई थिंक ऑन अ लार्जर एक्सटेंट भी ये ट्रू है। मैंने कुछ इंडियन अमेरिकन यूट्यूबर्स को भी ऑब्जर्व किया, जैसे सिंधवाद है, या एक और मुझे इसका नाम भी याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऑब्सोलीट भी हो गया वो वैसे तो ये इन लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किया इस बारे में। तो वो जो था उसका नाम चलो नहीं लेते, बट वो बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योर था। वो हर वक्त जो हमारे वाइट पीयर्स थे उनके आगे अपने आप को एक हद तक साबित करने की कोशिश करता रहता था कि देखो मैं कूल हूँ, मुझे इस मूवी के बारे में पता है, मुझे ये पता है कि ये न्यूयॉर्क निक्स कहाँ खेल रही है, मतलब सही समझ रहे हो, पूरा जर्सी वर्सी। और कोई मतलब मैंने इवन लाइक जो लोकल बंदे थे उनको कभी, लोकल इन द सेंस कि लाइक जो लोकल वाइट्स थे, वो उनको मैंने कभी जर्सी वर्सी पहन के देखा। वो भाई जर्सी पहन के आता था, हर मूवी के टीवी शोज़ की नॉलेज रखता था, और वो बहुत बड़ा वीड सपोर्टर था। और वो वीड के ऊपर लाइक लाइक एक पार्टनरशिप या दोस्ती सी बढ़ाने की कोशिश करता था जो दूसरे वाइट्स थे वहाँ पे उनके साथ। तो शायद एक वो भी रीज़न होगी। बट उसके साथ मेरी उसके साथ एक लंबी डिस्कशन हुई जिसमें थोड़ा सा वो बार बार इस बात पे भड़क रहा था कि तुम वीड को लाइक क्रिटिसाइज़ कैसे कर सकते हो, वीड तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और मैं सिर्फ उसको कह रहा था कि क्यों है ये बढ़िया चीज़। वो कह रहा कि तुम्हारे दिमाग में ये देती है, तुम्हें शांत करती है, ये करती है, वो करती है। मैं पूछ रहा था भाई पर तुम एक एक्सटर्नल एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने ब्रेन के साथ। तुम्हारे ब्रेन की एक बहुत ही सेंसिटिव न्यूरल स्ट्रक्चर है जिसमें तुम एक फॉरेन एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तुम्हें कैसे पता कि उसका क्या अमाउंट रहना चाहिए, या कब वो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, या कब तुम्हारा ब्रेन उस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाएगा, जो कि होता है। हर गांजा फूकने वाले बंदे को पता है कि भाई गांजा फूकने की तलब लगती है, तो यानी कि तुमने किया ना अपने आप को डिपेंडेंट। और मैं क्यों जाना चाहूँ अपने ब्रेन को एक फॉरेन स्टेट में, जो गांजा पीने के बाद इंड्यूस होता है जो फॉरेन स्टेट, मैं क्यों जाना चाहूँगा उस फॉरेन स्टेट में। आई एम हैप्पी विद द रेगुलर स्टेट ऑफ माई ब्रेन। मैं अपनी कॉन्शियसनेस, जैसा कि शुदाब ने बड़ा सही वर्ड यूज़ किया, मैं अपनी कॉन्शियसनेस के साथ हैप्पी हूँ भाई। मुझे वो गांजा इंड्यूस्ड हैप्पीनेस नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी द वे आई एम। एक बड़ा ही मोरल, एथिकल, लेट्स से कुछ लोगों के लिए शायद एथिकल ना हो, लेकिन एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है ये। और दूसरा एक मेडिकल आर्ग्यूमेंट है। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो एक फॉरेन एनवायरनमेंट तुम्हारे बॉडी के अंदर लेके आ रही है, और उसके अंदर ये
कैपेसिटी है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम डिपेंड हो जाओगे उस पर, यू विल स्टार्ट क्रेविंग इट, तो वो वर्थ नहीं है. इट्स नॉट लाइक फूड की तुम्हें खाना ही ज़रूरी है वरना तुम मर ही जाओगे, राइट? अगर तुम डिपेंड बना रहे हो. अच्छा हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे भाई कुछ लोगों को PTSD होता है, ये वो स्पेशल केसेस हैं. नॉर्मल लोगों को PTSD नहीं होता. नॉर्मल लोग वॉर जोन से नहीं आए होते. वो स्पेशल केसेस हैं. अगर उनको वो फ़ायदा दे रहा है इन स्पेसिफिक कंडीशंस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आई वुड स्टिल थिंक कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस हों जिनसे कि वो अपना जो प्रोसीजर है वो करें और दे कम ऑफ इट, लाइक एक प्रोसीजर हो उस चीज़ का भी, ताकि वो एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी गुजार सकें. एनीवे, ये एक बहुत लंबी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है. हाइपर लिबरल दिखने में पता है प्रॉब्लम क्या होती है? हम दिखने के चक्कर में कभी चेक ही नहीं करते कि बहुत सिंपल लॉजिकली देखा जो जाए, बात हो हर रही है चीज का प्रो है, हर चीज के कॉन है. हम ऐसे ऐड करते हैं कि चीज होली संपूर्ण रूप से अच्छी ही है. अरे मजे करो ना. दारू के भी बहुत सारे सोशल फंक्शंस हैं. ग्रुप बॉन्ड में, दोस्ती बनने में. भाई एक रीजन है ना कि न्यू ईयर पे खुलती है. एक रीजन है जब तुम्हारे जितने भी यूनिवर्सिटी के लोग थे जो जब भी मिलते हो तो बियर से लेके कुछ ना कुछ चलता है. क्यों? क्योंकि हेल्प करता है सोशल बॉन्डिंग में. फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी में अक्रॉस कल्चर्स में रहा है, दारू वो पी तत्व गई एक ग्लू रहा है. तो उसके फायदे तुम कह सकते हो सोशल ये भी है, बट आप उसके नुकसान भी तो देखो ना. सिमिलरली ये अगेन सेम केस है, दूसरे का भी नुकसान आउटवे करते हैं फ़ायदों को. ठीक है, आपकी सोशल बॉन्डिंग में आपको करेगी. वंस अपॉन अ टाइम आपने दोस्तों के साथ मिलके थोड़ा बहुत उसके साथ कर लिया, ठीक है, वो टू सम एक्सटेंट एक्सेप्टेबल है. बट आई डोंट थिंक कि अगर आप एक प्रिंसिपल्ड इंसान हो और आपने नहीं ही पीनी तो आप कोई और मॉकटेल या कुछ लेके नहीं कर सकते. अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो शायद आपको थोड़ा सा और फ्रेंडली बनने में हेल्प करे. वो भी एक कुछ चीज़ें हैं, बट डिपेंड करता है बंदा टू बंदा, पर्सन टू पर्सन. लॉजिक, सिंपल लॉजिक कि हर चीज के फायदे नुकसान तो आपको मिल सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कोई भी चीज के नुकसान नहीं है और हम उसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें लिबरल ओपन माइंडेड दिखना है और मजे को हमें दिखाना है कि मैं कितना ओपन माइंडेड पेरेंट हूं. कि मैं तो तुम्हें जैसे दूसरे पेरेंट्स, कुछ हो सकता है हाइपर अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, यानी कि जो ऑटोनॉमी ही मार दे रहे हैं. हम जो कहेंगे वही सही है. तो मैं उसका ऑपोजिट क्या होऊंगा कि तुम कुछ भी करो. भाई ये भी तो फिर काइंड ऑफ एक दो एक्सट्रीम्स में आ गए ना. दो एक्सट्रीम हमेशा याद रखना. ये एक स्केल, ये एक 2D स्केल नहीं है, ये एक सर्कल है. किसी भी चीज़ के जो एक्सट्रीम्स होते हैं ना, वो जाके पीछे सेम जगह पे मिल जाते हैं. ये तुम्हारे भाई का विचार है जो आई केम अप विद. अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो ऑटोनॉमी ही छीन लेती है इंसान से, यानी कि माता पिता जो कह रहे हैं हमारे अनुसार अच्छा बच्चा, काबिल बच्चा ये होता है, तो जब तुम्हें ये बोला जाए तुम्हें वो करना है. गुरुकुल की मर्यादा. एक वो हो गई. उसका ऑपोजिट हो गया कि जो चीजें सोसाइटी में सोशली फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम सप्रेस करने को कहा गया है, ना करने को कहा गया है, फ्राउन किया जाएगा जिन पे, तो वो तुम पूरा करो. क्योंकि मैं लिबरल और बहुत हाइपर प्रोग्रेसिव या बहुत ही ओपन माइंडेड देखना चाहता हूं. तो क्योंकि हम गाड़ेंगे ना नए झंडे, हम बनाएंगे नया समाज मैं कह रहा हूं तुम्हें मेंटली रिटार्डेड लोगों का. प्रॉब्लम है ना. इंटरेस्टिंग, तो वेरी इंटरेस्टिंग.